ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੈਪਟਰ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮ ਚੈਪਟਰ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2020 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ। 2020 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 2020 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਊਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜਿਸ ਆਰ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਔਨ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ। ਟੈਕਸ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਕੋਈ HUF ਹੈ, HUF ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ AOP ਔਰ BOI ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ ਮਾਰਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹਾਂ 2021 ਅਤੇ 2022 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਈਅਰ ਹੋਏਗਾ 2020 ਅਤੇ 2021, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2020 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2021 'ਚ 2022 ਜਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2022 ਅਤੇ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਈਅਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
पर पिछले साल नूं प्रीवियस ईयर मन्निया जाता और इस साल नूं असैसमेंट ईयर। हुण की है प्रीवियस ईयर 'च जिहड़ी आपां इनकम अर्न कीती है वो टैक्सेबल होएगी साडी इस साल विच, यानी कि असैसमेंट ईयर दे विच प्रीवियस ईयर दी इनकम टैक्सेबल हुंदी है साडी। पिछले साल दी इनकम इस साल दे विच साडी टैक्सेबल हुंदी है। ध्यान नाल देखना इत्थे की लिखिया होया है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन दी नैक्सट फॉलोइंग असैसमेंट ईयर। पिछले साल दे जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर है उहदे पूरे साल दे विच जिन्नी इनकम तुसी अर्न कीती है अगला साल यानी कि जिहड़ा साल चल रहा है प्रेजेंट असैसमेंट ईयर च उहदे ते टैक्स अप्लाई होएगा एट दी रेट्स जिहड़े भी उहदे उत्ते परसेंटेज अप्लाई होएगी उहदे हिसाब नाल एप्लीकेबल टू दैट असैसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर च जो अर्न किया है नैक्सट फॉलोइंग असैसमेंट ईयर चो टैक्सेबल होएगा। आई होप क्लैरिटी है। इदा दे अगे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे सो थोड़ी क्लैरिटी रखा। हुण जिद्दां देखो 2020 ते 2021 है प्रीवियस ईयर पिछला साल सी तेनों आपां की कवांगे कि फाइनैंशियल ईयर तो यह भी है तो यह भी है। देखो लिखिया होया है फाइनैंशियल ईयर है भी फाइनैंशियल ईयर पर पिछला साल सी हुण जिहड़ा प्रेजेंट चल रहा है तो जिहड़ा पिछला साल सी दैट इज़ प्रीवियस ईयर जिहड़ा चल रहा है असैसमेंट ईयर। पिछले साल दे प्रीवियस ईयर च फाइनैंशियल ईयर च आपां इनकम अर्न कीती, इस साल दे असैसमेंट ईयर च फाइनैंशियल ईयर च जिहड़ी आपां पिछले साल च इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर उहदे ते चार्ज होएगा साडे ते टैक्स। आई होप ये डायग्राम तुहानूं काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे रहा होएगा। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट दी रेट्स फिक्स इन फाइनैंस एक्ट। जोड़ा इनकम टैक्स है किदे ते चार्ज होंदा है, ये रेट्स कौन डिफाइन करता है कि कितनी परसेंटेज अप्लाई होनी है। सो फाइनैंस एक्ट होंदा एक सेंट्रल एक्ट है जोड़ा कि ये परसेंटेजिस डिसाइड करता है कि इन्ने परसेंट टैक्स चार्ज होना है। टैक्सिस जोड़ा टैक्स है फ्रेंड्स वो किदे ते चार्ज होंदा है, टैक्सिस चार्ज ऑन दी टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। टैक्स किदे ते चार्ज होंदा है, पहली गल जिहड़ी पूरे साल दी तुहाडी टोटल इनकम होंदी है, ठीक है, जो कंप्यूट करके निकली होएगी वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इहदे उत्ते तुहाडे ते टैक्स अप्लाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 सबसैक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 सबसैक्शन 1 की आंदा है इनकम ऑफ वन फाइनैंशियल ईयर, मतलब जिन्हों आप कह सकते हैं कि पिछला साल सी प्रीवियस ईयर पर सीगा था फाइनैंशियल ईयर। इनकम ऑफ वन फाइनैंशियल ईयर जिहड़ा पिछला साल सी इज़ टैक्सेबल इन फॉलोइंग फाइनैंशियल ईयर, मतलब अगले फाइनैंशियल ईयर जिन्हों असीं की कहने आ नोन एज असैसमेंट ईयर। आई होप मैनूं इनू दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने की लोड़। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होएगी अगले साल यानी कि असैसमेंट ईयर दे विच। एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी लिखी है, रिपीट सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं समझ आया इनू दोबारा देख लो। फाइनैंशियल ईयर दोनों नूं ही फाइनैंशियल ईयर कहने आ, पर जिथे प्रेजेंट एट प्रेजेंट असी प्रेजेंट आ दैट इज़ असैसमेंट ईयर, बट इस तो पिछले साल नूं की कवांगे प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर से जिहड़ी आपां इनकम अर्न कीती वो सानूं कदों पता चलेगी, जदों पूरा साल लंघ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सैक्शन 4 डिफाइन यही करता है। सैक्शन 4 सबसैक्शन 1 की कहता है जिहड़ी तुसी पिछले साल की इनकम पिछले साल च इनकम अर्न की है उन्होंने तुसी अगले साल च उहदा टैक्स पे करो। सिंपल जी गल है, कुछ समझने वाला नहीं है। जी एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखी हुई है मैं। सपोज करो आई अर्न ₹10 लाख थ्रू आउट द ईयर, बट ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर मैनू जी लॉस हो गया 7 लाख रुपए का। पूरे साल दे विच मैं 10 लाख रुपए कमाए, साल दे एंडले दिन जिद्दां 31 मार्च नूं साल दा लास्ट डे हुंदा है, 30 मार्च नूं लगा लो, मैनू नुकसान हो गया 7 लाख रुपए का। हुण मेरा जिहड़ा पूरे साल दा प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए गिनिया जाएगा। एक नहीं है कि 10 लाख नूं आपां देखांगे, उन्होंने सिर्फ आपां 3 लाख रुपीज़ देखांगे कि 3 लाख मैं पूरे साल च अर्न कीता। दैट इज़ सैक्शन 4 सबसैक्शन 1। अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 सबसैक्शन 2 आंदा है जिहड़ा सैक्शन 4 सबसैक्शन 2 बड़ा इंटरस्टिंग केस है, ध्यान नाल देखना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है देखो, इनकम टैक्स पेएबल इन असैसमेंट ईयर, जिहड़ा इनकम टैक्स है उन्होंने आप असैसमेंट ईयर पे करते हैं, ठीक है। कैन बी कलैक्टिड बाय द गौरमेंट इन प्रीवियस ईयर, पर इनू गौरमेंट एक तरह का साडे तो पिछले साल ही कलैक्ट कर चुकी होंदी है। किद्दां देखो, पहले ध्यान नाल लिखिया की है इनकम टैक्स पेएबल इन असैसमेंट ईयर हुंदा असैसमेंट ईयर ही पे है, पर इनू एक तरह का गौरमेंट वालों कलैक्ट पिछले साल ही कर लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ TDS,
in the form of TDS और एडवांस टैक्स इन दी फॉर्म ऑफ TDS और एडवांस टैक्स। हुण तुसीं दो सैक्शन पढ़े, सैक्शन 4 सबसैक्शन 1, सैक्शन 4 सबसैक्शन 2। सो देखो इत्थे की लिखिया, तुहानूं थोड़ी क्लैरिफिकेशन देगा। सो अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 सबसैक्शन 1 जिहड़ी फाइनल असैसमेंट है शैल बी डन इन असैसमेंट ईयर ओनली। जिहड़ी फाइनल टैक्स पेमेंट होनी है वो अगले साल यानी कि जिहड़े प्रेजेंट है वो पिछले साल इस साल च पेमेंट होनी है टैक्स दी असैसमेंट ईयर ओनली। बट अकॉर्डिंग टू सैक्शन 4 सबसैक्शन 2 assessee may be required to pay some amount of the tax as soon as income ਆਨ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਅਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਆਏ, TDS ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ example of TDS and advanced tax both, so ध्यान ना देखना। example of TDS, suppose करो I have taken the house of Mr. आलू on rent for which I have to pay 30,000 per month on rent। मैं किसी तो हाउस रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ मैं पर मंथ 30,000 रुपीज़ पे करने ने। now this amount of 30,000 is the income। सो ये 30,000 की है मिस्टर आलू की इनकम है। सो अकॉर्डिंग टू अगर कंसैप्ट देखा जाए TDS के कंसैप्ट के अकॉर्डिंग, सो ये विचों कुछ अमाउंट TDS का डिडक्ट करना ये मेरी ड्यूटी है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हले ही रेंट पे करन लग्या ही उस अमाउंट दे विचों TDS का कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लवां। जस्ट देखो तो की लिखा हुआ है, it is my duty to deduct certain amount from the rent as per income tax law and deposit such amount with the government as on the behalf of Mr. आलू। और बाद विच उसे अमाउंट नू बिहाफ ऑफ मिस्टर आलू गवर्नमेंट को मैं डिपॉजिट करवाऊँगी। थोड़ी जी क्लैरिटी मिलन दी आई थिंक तुहानूं होप है। मिस्टर आलू कोलों मैं हाउस रेंट ते लिता, मैं उन्होंने पर मंथ 30,000 पे करने सी। सो इहदे विच TDS डिडक्ट करन दी ड्यूटी मेरी बनती है कि जब मैं रेंट पे करना है सो मैं उहदे चों TDS डिडक्ट करा, बाद विच उहनूं गवर्नमेंट को सबमिट करा विद द नेम ऑफ मिस्टर आलू। हुण अगे देखो इहदे च की है, बहुत ईजिली तुहानूं क्लैरीफाई हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, सपोज किता अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ आई डिडक्ट 10%। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए जिदा कि मैं 10% डिडक्ट कर लिया, 30,000 का 10% 3,000। सो मिस्टर आलू विल गैट, मिस्टर आलू की इनकम कितनी हुई हो 27,000। सो असी ये कह सकते हैं जो 3,000 का टैक्स पे किया गया है बाय मिस्टर आलू टू दी गवर्नमेंट इज़ दी सेम ईयर। क्योंकि मिस्टर आलू ने तो जो रेंट देखो बई जो मिस्टर आलू नूं रेंट रिसीव होया, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਆਲੂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ TDS ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਆਲੂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਆਲੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आई होप इट इज़ क्लीयर। उस तो बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एडवांस टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स की है जी, देखो बहुत ईजी है। देखो सपोज एक बिजनेसमैन है, इन दी फर्स्ट 2 मंथ्स जिदा कि अप्रैल ते मई 2 महीने पहले दे लगा लो, उहदे विच ही उन्हें प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए का। स्टार्टिंग दे बिजनेस दे 2 महीनों के उन्हें प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख रुपए का। सो इस सैक्शन 4 सबसैक्शन 2 की कहता है जी, तुसी जे 2 महीने 3 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिता है, सो तुसी अगले मंथ्स की अपनी अर्निंग नूं अज्यूम कर सकते हो कि इन्नी हो सकती है। सो अगर तुसी एस्टीमेट मार सकते हो कि मेरी अगले महीने अर्निंग इन्नी होएगी, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एस्टीमेट तुसी अगे टैक्स पेमेंट करोगे जिसनों आपां एडवांस टैक्स कहने हैं। देखो कि लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अर्निंग इट इज़ एस्टीमेट दैट दिस ईयर आई मे अर्न ₹15 लाख नियरली। अगर आप एस्टीमेट लगाइए तो पूरे साल च मैं 15 लाख के नियर बाय अर्न करूँगी। ठीक है,
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ, ਅਗਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ कैलकुलेट करना पेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम विच इज़ एस्टीमेटेड टू बी अर्न, उस इनकम के बेसिस ते जिदा एस्टीमेट है कि मैनू इन फ्यूचर अर्न होएगी। पक्का नहीं है बट रिटर्न भी मिल जाएगा अगर नहीं अर्न हुई, बट चांसिस है हो जाएगी। सो वो बेसिस ते तुहानू एडवांस टैक्स सबमिट कराना पेगा। एस्टीमेट टू बी अर्न थ्रू आउट द ईयर एंड आई शैल पे एट लीस्ट 50%, जिन्ना थोड़ा टैक्स बनता है उदा 15%, एटलीस्ट 15% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी बाय 15 जून। 15 जून तो पहले पहले देखो अप्रैल मई 2 महीने 15 दिनों के विच कैलकुलेट करोगे अगले महीने का या साल के विच कितना कु एस्टीमेट सानू अर्निंग होने वाली आ, उहदे बेसिस ते तुहानू 15 जून तो पहले पहले टैक्स की पेमेंट करनी है। सो अगर उस तो बाद दी देखी जाए, सिमिलरली इन सैप्टंबर आई हैव टू रीमेक दी एस्टीमेट। सो दोबारा एस्टीमेट लगाना है जिद्दां कि सैप्टंबर दे विच एनी इनकम विच आई मे अर्न इन दी ईयर। On the basis of that estimate, I have to calculate my advance tax liability and I shall pay at least 45% of such tax liability। देखो इत्थे भी सेम सितंबर तो बाद भी आपां एक एस्टीमेट लगाना है कि आपां कितना अर्न कर रहे हैं, बट उपर आपां 15% पे कर रहे सी एंड दी हाफ ऑफ द ईयर च जाके आपां उस तो बाद 45% जिन्ना भी साडा टैक्स बनता उसका 45% पे करना है आफ्टर रिड्यूसिंग दी अमाउंट विच आई पे अर्लीयर। उस अमाउंट को रिड्यूस करके जिहड़ा मैं पहले पे कर चुकी हाँ। सो इनू आपां 15 सितंबर तो पहले पहले सबमिट करना होंदा है। आई होप क्लीयर है फ्रेंड्स। मेरे को जिहड़ा पेजिज है ना, देख सकते हो 1 पेज दिस है, ठीक है, 1 पेज ए वा जिहड़ा आपां देखिया और 1 पेज ए वा। अगर तुसी टाइट करके भी लिखते हो, किसी भी तरह लिखते हो, सो 5 मार्क्स का मटीरियल मैक्सीमम 2 पेजों का तुसी अटैम्प्ट करोगे जो ईजिली इन्ना नोट्स के थ्रू बन जाएगा। मैनू यही होप है कि तुहाडा इहदे चों मटीरियल काफ़ी निकल जाएगा। बहुत मुश्किल सर्च करके कढ़िया है क्योंकि कंटेंट तो यूट्यूब पर बहुत सीगा इस क्वेश्चन के उपर, बट इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट 5 मार्क्स च किद्दां करोगे, क्योंकि मैं देखिया मोस्टली वीडियोज़ 1-1 मिनट दियां ने, क्योंकि इन्ना लेंथी कॉन्सैप्ट नहीं है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। बट तुहानूं मैं हर बारी समझाया कोई भी कंसैप्ट की लेंथ बढ़ाने का तरीका यही है, उहदियां एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करो। देख सकते हो मैं कितनी एग्जाम्पल्स दी हैं, फर्स्ट वो मीनिंग दी, सैकेंड TDS दी, थर्ड दी है आप एडवांस टैक्स की। सो एग्जाम्पल्स इज़ दी बेस ऑफ द क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे एग्जाम्पल्स देने तो कंजूसी कर जाते हैं काफ़ी बारी। सो आई तो थिंक कि करनी चाहिए। बाकी अगर तुहानूं क्वेश्चन कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सैक्शन खुला है। टैलीग्राम अकाउंट साडा हैगा, उहदा लिंक तुहानूं नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों। और साडे इंस्टाग्राम ID तुहानूं स्क्रीन पर पॉपअप हो रही शो हो रही है। सो तुसीं उत्थे भी सानूं फॉलो कर सकते हो और साडे नाल प्रॉब्लम्स अपनियां शेयर कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स तुहानूं वीडियो चंगी लगी होगी, तुसीं अपने दोस्तां नाल इहनूं जरूर शेयर करोगे। मिलदे आ तुहानूं अपनी अगली वीडियो दे विच नैक्सट न्यू क्वेश्चन दे नाल। बाय बाय दोस्तों।